کہ مقدس پولس اپنے فرزند تموتھیوس کو خط کے ذریعہ سے سکھا رہا ہے، اور خدا کا کلام آج کل بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے، ایک جیسا۔ ہم نے انسان آئیں گے جائیں گے، لیکن خدا کا کلام وہی کا قائم ہے۔ آمین۔ اس وقت یہ حوالہ تموتھیوس کے لیے تھا، آمین، اور اس کلیسیا کے لیے جو اس وقت زمین پر زندہ تھی، اور آج یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اس کلام کو آج ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ آمین آمین۔ اب یہاں پر مقدس پولس تموتھیوس کو خط کے اندر لکھتے ہیں کہ جوانی کی خواہش سے کیا کر بھاگ۔ آمین۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اب بہت سال گزر گئے اور ہم 2022 پر بات کرتے ہیں، بہت سی ہم نے دوڑیں لگائی لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، اور بہت سے ایسے دعائیں درخواستیں جو ہم نے خداوند کے حضور رکھی، کتنے لوگوں کی پوری ہوئی ہیں اس سال میں 2022 میں؟ جن کی ہوئی ہے زوردار تالیاں بجائیں۔ اور سب کی پوری ہوگی اگر خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا، سب کی درخواستیں پوری ہوں گی۔ اور آج کا دن، آج کا ٹائم لکھ لیں، جو آپ کی درخواست ہے اپنی کتاب مقدس پر لکھ لیں، کسی پیج پر لکھ کر اپنی کتاب مقدس میں رکھ لیں، اور آنے والے سال میں آپ چیک کیجئے گا کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں وہ ساری درخواستیں پوری ہوں گی اگر آپ ریگولر اس کے لیے پریئر کرتے رہیں گے۔ آمین۔ اکثر اوقات ہم پریئر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک دن دعا کی، دوسرے دن دعا کی، تیسرے دن دعا کی، چوتھے دن ہم اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ جب ہم بھول گئے تو پھر خدا کی ضرورت ہے، کیونکہ تسی بھول گئے، ضرورت تھا خدا دی، ہماری ضرورت ہے۔ آمین۔ ہماری ضرورت ہے، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں ان باتوں کو لکھ لیں، اور درخواستیں بھی اچھی ہوں۔ اور اکثر آپ کو پتہ ہے لوگ درخواستیں کیا لکھ لیتے ہیں، جنہیں جو خدا دی مرضی میں جو لکھ کے دعا کرتے رہتے ہیں، بات جو کہنا خدا سنتا ہی نہیں، نیت کے ساتھ، نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آمین آمین۔ اب یہاں پر مقدس پولس فرماتے ہیں کہ جوانی کی خواہش سے کیا کر بھاگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان جو تموتھیوس تھا، وہ نوجوان اس کا فرزند تھا، جیسے آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور دعا ہماری زندگی میں بہت تھوڑی تھوڑی سی تعریف کریں گی دعا کی کیا ہے، تھوڑی تھوڑی سی سارے۔ دعا ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہے زبردست، اور ہمارے ذہنوں کو کھول دیتی ہے، دعا ہمارے ذہنوں کو کھول دیتی ہے، اور دعا ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے، خدا ہم سے کیا کرتی ہے؟ قریب کر دیتی ہے، اور دعا کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ میل کرتے ہیں۔ زبردست، دعا کے ذریعے سے آمین۔ دعا بہت سی تعریف ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا ضروری ہے، دعا رشتہ ہے خدا کے ساتھ۔ آمین آمین۔ کیا ہے جی جو نمبر ملانا پہنتا نا تو پھر کیوں لگے جاتا ہے، کیا جی چلے جاتا ہے، ملانا پڑتا ہے نا۔ اسی طرح خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہونے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین آمین آمین۔ جب آپ اور میں مل کر دعا کریں گے تو پھر آسمان کھلے کھلے، کوئی روک نہیں سکتا، لیکن کیا ہے؟ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ دعا کیا ہے؟ رشتہ ہے خدا باپ کے ساتھ، اور یہ ایک کنیکشن ہے، سمجھو سیم میں تیری خدا نے جوڑ دی۔ آمین آمین۔ اور اس میں ہمیں سب کو آنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح آج بے شمار خادم دعا پر زور دے رہے ہیں، دعا کرو دعا کرو۔ کلیسیا آپ پائیں کرتے پائیں نہ کریں، لیکن یسوع مسیح کی خاص بات پتہ کیا تھی؟ اس کے شاگرد دعا کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح اپنے وقت پر پہاڑ پر جا کر دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آمین۔ اور پھر وہ خود بخود معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں بہت سے لیڈر صاحبان دوسروں پر زور دیتے ہیں دعا کرو، آپ نہیں کرنے، تو پھر معجزہ کیسے ہوگا، زندگی کیسے تبدیل ہوگی؟ جیسے یسوع مسیح
हालांकि खुदावन थे, वो खुदा थे, सारी कुदरत उनके हाथों में थी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो दुआ करके दिखाते थे कि जिन्हें मैं हाँ उनकी तुसी दुआ कर रही। आमीन। और अगर खुदावन यीशु को जरूरत थी प्रेयर करने की, मुझे और आपको कितनी जरूरत है। आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम हो, तो आए मिलकर दुआ करें। हालेलुया। आप खुद देखेंगे और आप कहेंगे, आपकी गवाहियां इस मस्बा पर आएंगी यीशु मसीह के नाम से, जब आप वफादारी के साथ खुदावन की हुजूर दुआ मांगेंगे। आमीन। और दुआ ये नहीं आज दुआ कर रहे हैं कि खुदावन मुझे औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, 4 5 6 दिन बाद भूल जाए। जब आपने लिख कर रखा होगा तो खुदावन को भी पता कि ये बात लिखी गई है। आमीन। मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ कि सोने के कटोरे में इन मुकद्दसीनों की क्या है जी, दुआएं हैं। आमीन। सनातकारी आगे बोलते जाए, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बहुत से ऐसे काम है। यही बात मैं करना चाह रहा था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपको पता चल गया होगा, ये जवानी की ख्वाहिशें हैं। आमीन। इनसे भाग कर हमें मुकद्दसीन की जमात के अंदर आने की जरूरत है। आमीन। और जगह बजगह हमें मिलता है, जब हम ईमान की किताब को पढ़ते हैं तो वहां सबसे बढ़कर 4 चीजों पर गौर किया गया। ईमानदारों की जमात क्या थी? क्या थी जी? एक दिल, एक जान। किसी ने भी अपने माल को अपना ना समझा। आमीन। और दूसरी, वो क्या करते थे? रसूलों से तालीम पाते, रोटी तोड़ते और रफाकत करते। आमीन। ये चारों की चारों चीजें हमें गिरजाघर से मिलेंगी। आमीन। जब ये गिरजाघर के अंदर हम होंगे, दूसरों को भी लाए जो कहीं भी नहीं जाते, उनको लाएं ताकि वो भी खुदा के बदन में शामिल हो सके। आमीन। 4 अहम बातें जो कलीसिया को करना बहुत जरूरी है: रोटी तोड़ना, रफाकत रखना और दुआ करना। आमीन। ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और यही उनकी सारी की सारी मोहब्बत का निचोड़ था कि वो रोटी भी तोड़ा करते थे, दुआ भी किया करते थे। आमीन। और आज की कलीसिया को जरूरत है, आज की कलीसिया को बड़ी जरूरत है कि वो दुआ में हर वक्त तैयार रहे। आमीन। और फिर आप जो कुछ भी चाहेंगे वो आपके लिए खुदावंद करेगा। आमीन। आमीन। सबसे बढ़कर क्या करना है? जवानी की ख्वाहिश से भागना है। दूसरा क्या करना है? चर्च में रफाकत रखनी है, दुआ करनी है और तालीम पानी है। आमीन। आमीन। ये चीजें हमारे अंदर होंगी तो हम ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। आमीन। रूहानी ब्लेसिंग। आमीन। और आए मेरे साथ निकाले जरा ईमान की किताब, उसका 3रा बाब। जी निकालिए सबने, उसका 3रा बाब पर पहली आयत से पढ़ दे। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। आमीन। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर कहाँ जा रहे थे? आमीन। दुआ के वक्त दुआ की जगह को होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं पतरस और यूहन्ना? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? किस लिए? और से क्या करते हैं? दुआ करते हैं, यानी दुआ की जगह, दुआ के वक्त दुआ की जगह। आमीन। अब वो परमात्मा है कि उस जगह से पाक, और जो पाक दिल के साथ क्या करते हैं? खुदावन से दुआ करते हैं। आगे पढ़े जी। उनके साथ रास्तबाजी, उनके साथ रास्तबाजी। आमीन। आगे। और ईमान और ईमान और मोहब्बत और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, सुलह का तालिब हो। आमीन। और आज ये कलाम हम सबके लिए है। अगर हम 2022 की ख्वाहिशों के अंदर आज भी फंसे हुए हैं, उनसे भागिए और 2023 के अंदर पाक दिल के साथ जो खुदा की हैकल में दुआ करते हैं उनके साथ शामिल हो। आमीन। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस अपने फर्जंद को यही बात सिखा रहा है, और आज ये बात मुझ पर और आप पर है कि हम उन ख्वाहिशों से भागे जो 2022 के अंदर हमारे पीछे थी, 2022 के अंदर हमारी जिंदगियों के अंदर काम कर रही
रही थी, उन ख्वाहिशों से भाग कर 2023 में हम पाक दिल वालों के साथ दुआ करें, जो खुदावन के हजूर पाक दिल के साथ क्या कर रहे हैं जी, दुआ कर रहे हैं, और मोहब्बत और ईमान और सुलह का ताल्लुक हो। आमीन। दुआओं के साथ दूसरी बात वो क्या कहता है जी, रास्तबाजी के साथ। रास्तबाजी। अक्सर आप देखते हैं लोग दुआ भी बड़ी करते हैं, लोग दुआ भी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनका हम रहन सहन देखते हैं तो हमारा दिल क्या होता है, यार चर्च से तो बड़े बड़े नारे लाते हैं, बाहर की जिंदगी के लिए रास्तबाजी हमारे कामों से जाहिर होती है। आमीन। वैसा ही किरदार हमारा होना चाहिए जैसा मसीह का है। आमीन। अब यहाँ पर वो कहता है कि रास्तबाजी, आमीन, और ईमान सबसे बड़ी हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरी होती है, और जिस शख्स का ईमान मजबूत है वो कभी भी गिरता नहीं है। और अक्सर ईमान उनका कमजोर होता है जो कलाम को नहीं सुनते, जो कलाम को नहीं सुनते, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से, मसीह का कलाम कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। और जो आएंगे तो कलाम कितने होना है, जब आएंगे तो कलाम आएगा हमारी जिंदगी में। आमीन। तब ईमान भी पैदा होगा। आमीन। आमीन। और आगे वो फरमाता है मोहब्बत, ये किताब मुकद्दस एक ही लफ्ज पर है, मोहब्बत पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना दुआ के वास्ते वक्त यानी तीसरे पहर कहाँ जा रहे हैं, हैकल। आमीन। और आगे जो बातें लिखी कितने लोग जानते हैं, और क्या हुआ वहां पर, जब वो दुआ की जगह पहुंचे हैं, हैकल के सामने एक शख्स लंगड़ा। जन्म का लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था। वो क्या कर रहा है, भीड़ से मिला है अंदर, उनसे भी भीख मांगी, उनसे भी भीख मांगी। आमीन। और बड़ी लिखा है कि वो बड़ी गौर से उनकी तरफ क्या कर रहा था, आज भी कलीसिया की तरफ भिखारी देख रहे हैं। आमीन। और आप भिखारी नहीं हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर ये भिखारी कुछ लेने की गर्ज से उनकी तरफ बड़ी गौर से तवज्जो के साथ क्या कर रहा है, देख रहा है। और पतरस ने कहा हमारे पास सोना चांदी आज भी खादमों की तरफ, ईमानदारों की तरफ भिखारी बहुत से हैं जो यीशु के बदन से अलग हैं। अभी भी हमारे अजीज रिश्तेदार बहुत से ऐसे भिखारी हैं, इसको पैसों की जरूरत है, कई भिखारी ऐसे जिनको शिफा की जरूरत है, बहुत सी ऐसी जरूरियात हैं आज भी उन लोगों की, और वो खादमों की तरफ बड़ी गर्ज से अपनी आंखें लगाए गौर से उनकी तरफ देख रहे हैं कि हमें कुछ खादमों से क्या हो जी मिले। आमीन। और यहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये हमारी तरफ बड़ी गौर से देख रहा है, और उसने फील किया कि ये चाहता है कि हमसे कुछ ले, लेकिन वो अपने वक्त के मुताबिक हैकल में क्या करने गए थे, जब आप अपने वक्त के मुताबिक हैकल में आएंगे मौजज़ा खुद होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आमीन। जरूरी क्या है, अपना वक्त खुदा के